Welcome students, we are going to see a very interesting topic to discuss, that is forest and wildlife resources. The moment I say forest, one thing comes to my brain is ecological system. Forest is actually the home of flora and fauna, that is plants and animals. That means in this particular case I am going to understand more about a term known as ecological system, as we are having a lots of biodiversity. So students, what do you mean by the word ecological system? That means the interdependence of microorganisms, animals, trees, human beings on each other along with air, soil and water. That means we are anyways depending upon microorganisms, we are depending upon animals, plants, and even they are depending upon the consumption done by the humans. So all of these are the components of the ecological system and they are interrelated or they are interdependent on each other. As I can also say, we need air, we need water, we need soil. That means students, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें हम बोल सके कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है. No, हमको सबकी ज़रूरत है. We need air for breathing. We need water for drinking. We need soil. Soil is a very important component by which we can get food. Crops तो soil में grow होंगे. Nitrogen cycle soil में चलता है. We are studying lower standards, so this is also important for food. That means ये सब फैक्टर्स है जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और एक इकोलॉजिकल सिस्टम को पैदा करते हैं. दैट मीन्स हम लोग का डिपेंडेंस हमेशा बढ़ते ही रहेगा. हम लोग का सबका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो आई नीड अ प्रॉपर बैलेंस इन दिस इकोलॉजिकल सिस्टम. नाउ व्हेन आई से इकोलॉजिकल सिस्टम में अगर बैलेंस चाहिए तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि इंडिया में बेसिकली स्पीशीज कितने हैं. So, अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया is one of the richest country as far as species are concerned. So, India is a very lots of huge biodiversity. First of all, students, हमने देखा है पिछले क्लासेस में कि इंडिया के पास लैंड पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटोज है, आइलैंड्स है, कोस्टल एरियाज है. इसीलिए दैट इज अ बेसिक रीजन इंडिया के पास इतना अच्छा फिजिकल प्लेटफॉर्म है कि वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Hence, we are having almost 8% species of the world. पूरे दुनिया के 8% species इंडिया में पाए जाते हैं. Hence, India becomes one of the richest country. It becomes one of the richest country as far as biodiversity is considered. वर्ल्ड में अगर 1.6 मिलियन है तो 1.6 मिलियन में से 8% इज अवेलेबल इन दी कंट्री. सो वर्ल्ड के पास कितने हैं? वर्ल्ड इज हैविंग 1.6 मिलियन स्पीशीज. इसमें से अपने पास कितने हैं? 8% है. ओके, नाउ when I say this percentage is increasing, इतना सारा percentage है, so you must be wondering how exactly it has been divided. So we are having two major patterns, that is fauna and flora, or flora and fauna. आप कैसे भी उसको बोल सकते हैं. Fauna means animals and flora means plants. So basically animals and plants की बातें हो रही है. So we are having around 81,000 कितने? 81,000 स्पीशीज है अपने पास एनिमल्स के, एंड फ्लोरा के है 47,000. हाउ इंटरेस्टिंग ना. मतलब अपने कंट्री में हम लोग का पॉपुलेशन तो है ही, ह्यूमन पॉपुलेशन तो है ही, लेकिन फौना का भी पॉपुलेशन काफ़ी है, फ्लोरा का भी पॉपुलेशन काफ़ी है. एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्पीशीज है, ये एनिमल्स काउंटेड नहीं है. दिस आर द स्पीशीज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ. नाउ 47,000 में से 15,000 स्पीशीज है जो है फ्लावरिंग स्पीशीज. यहाँ पे कितने हैं? 15,000 आर flowering species.
इसमें से जो भी है ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम आर एंडेमिक इन नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिक इन नेचर? दैट मीन्स दे आर इंडिजीनियस, मतलब अपने कंट्री में ही पाए जाते हैं. दैट मीन्स इन इंडिया. Isn't that interesting, students? That simply means that we are having a good amount of flora and fauna. Now, why are we discussing? Why am I telling you all this? I am telling you all this because very soon we are coming to a point जहाँ पे forest का degradation हो रहा है, deforestation हो रहा है. Now, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इतने सारे flora and fauna होने के बावजूद भी we are having a good amount of threatened list. कौन सी लिस्ट की बात की मैंने? थ्रेटेंड लिस्ट. तो थ्रेटेंड लिस्ट का मीनिंग होता है कुछ लोगों का, कुछ एनिमल्स का, कुछ प्लांट्स का जो हैबिटेट है वो नष्ट होते जा रहा है, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है. सो 10% ऑफ फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स आर ऑलरेडी देयर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट. कितने? 10% ऑफ फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स are already present on the threatened list. What do you mean by threatened list? Yes students, उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग ये होगा कि इनको अभी बहुत ज़्यादा खतरा है बिकॉज इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो पूरी तरह से या फिर होने वाला है नष्ट. अगर ये कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, दैट सिंपली मीन्स दैट दे आर गोइंग टू लूज देयर हैबिटेट. और अगर ये अपना हैबिटेट लूज करेंगे सो ये अमाउंट, ये जो नंबर्स है ये हमेशा कम होते रहेंगे. सो लेट अस सी एग्जैक्टली कितने लोग थ्रेटन है. सो अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहूंगा. मैमल्स की अगर बात करें तो अराउंड 79 मैमल्स. बर्ड्स की अगर बात करें सो बर्ड्स में 44 बर्ड स्पीशीज. सो रेप्टाइल्स 15 reptile species are endangered. Amphibians around 3 amphibians, and plant species is around 1500, that is 1500. So students, we can see over here, पहले तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारा डाइवर्सिटी है और अभी हम बात करें कि भाई देयर इज ऑल्सो समथिंग विच इज ऑफ अ वरिंग फैक्टर, दैट इज अ थ्रेटेंड लिस्ट इज एग्जिस्टिंग. ये जो थ्रेटेंड लिस्ट है इसमें 10% फ्लोरा 20% मैमल्स है, लेकिन ये जो एक आपको मैं नंबर्स दिए, दिस नंबर्स आर ऑलवेज इंक्रीजिंग. ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. दैट मीन्स द एंडेंजर्ड लिस्ट is also increasing. अगर ये लिस्ट ऐसे ही बढ़ता रहेगा then what is going to happen? It is going to create a lot of problem. So now let us try to focus on an important point. इतना सब कुछ important है, इतना सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो exactly हो क्या रहा है? See, basically हमारे पास अपने कंट्री में जो ये एक्सटिंक्शन नाम की चीज़ जो चालू है, जो थ्रेटन लिस्ट नाम की जो चीज़ चालू है, इट इज़ 50 to 100 times मोर देन द एवरेज एक्सपेक्टेड नेचुरल रेट. इट इज़ अबाउट 50 to 100 times मोर देन योर एवरेज एक्सपेक्टेड natural rate. So let us take one simple pattern to understand exactly what is happening. So लोग क्या करते हैं, एक एरिया बनाते हैं. Okay, let this be any area. ये एरिया में माउंटेन्स है, so this is a mountainous area, hilly area है ये पूरा. Okay, इनके आसपास काफ़ी सारा फॉरेस्ट एरिया है. आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो फॉरेस्ट है ये काफ़ी डेंस है. वन मोर पॉइंट इज, ये फॉरेस्ट अपने आप ग्रो हुआ है, इट्स अ नेचुरल वेजिटेशन.
नेचुरल वेजिटेशन में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है. सो आई कैन कीप ऑन ड्रॉइंग दिस ट्रीज एज लॉन्ग एज आई फील कि यस बॉस, इतने ट्रीज मिलना थोड़ा मुश्किल ही हो गया इंडिया में बिकॉज ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. यहाँ से आने वाली नदियाँ भी है, देयर आर मेनी रिवर्स कमिंग फ्रॉम हियर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, सो ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसमें मैंने आपको एक तो दिखाया लैंड पैटर्न्स है, ज़मीन के तरीके, टोपोग्राफी अलग अलग हो सकती है. ये है मैंने आपको बताया फॉरेस्ट एरिया. अभी नदी किनारे एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिट्स होगा. सो यहाँ पर डिपोजिशन काफ़ी अच्छा होगा. सो डिपोजिशन होने की वजह से ये जो ब्लैक लाइंस बना रहा हूँ ये काफ़ी हद तक फर्टाइल एरिया है. इसका मतलब आप मेरे ग्लोब में देखो, ये जो मैंने ग्लोब बनाया है इसमें किसी भी तरीके का ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं दिख रहे. बस द मोमेंट आई स्टार्ट विद वन हाउस ओवर हियर, सो अगर ये घर है किसी के, दिस आर द ह्यूमन सेटलमेंट्स. सो ये घर उधर ही होंगे जहां पर फैक्टर्स होंगे फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जहां पे ऑक्यूपेशंस होंगे. नाउ इमेजिन दिस एरिया विल बी कवर्ड विद फॉरेस्ट. मतलब अपने कंट्री में, हमारे कंट्री में पहले से फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ है बाय विच द फॉरेस्ट हैड टू डिक्रीज. सी द अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट आई एम ड्रॉइंग. The amount of forest I am drawing is very high. The only issue over here is जैसे जैसे लोग आने शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे they need more area. They need more area. So the basic problem of this is humans, that is the increasing population. अगर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है जो हमेशा बढ़ने ही वाला है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. नाउ सी, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है रिवर के आजू बाजू वाला एरिया जो मैं क्रॉपिंग के लिए यूज़ करूँगा. ये मेरे क्रॉप्स है. ओके, ये जो है ना ऐसे लाइन्स वाले, ये सब क्रॉप्स है. पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगा, अभी ये घर कम पड़ेंगे और नए नए घर आएंगे. सो न्यू हाउसेस विल ड्रॉ इन अ रेड मार्कर. दीज आर द न्यू एरियाज. न्यू एरिया डेवलप हो गया, न्यू एरिया डेवलप हो गया. व्हाट इज हैपनिंग? न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, न्यू पीपल आर कमिंग टू द एरिया एंड द एरिया इज नाउ ऑक्यूपाइंग मोर फॉर ह्यूमंस. सो इजी स्ट्रेस किसके ऊपर आएगा? हु विल बी हैविंग द इजी स्ट्रेस? अगर इजी स्ट्रेस देखना है तो आप बोल सकते हैं कि सर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो खेती बाड़ी के लिए एरिया कम करे, दैट इज एग्रीकल्चर, आइदर डिक्रीज द एरिया फॉर एग्रीकल्चर. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं. मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं? बिकॉज ये एरिया में मुझे फूड ग्रेन्स मिलेगा. सो एग्रीकल्चर विल गिव मी लॉट्स ऑफ फूड ग्रेन्स. सो फूड ग्रेन्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे एग्रीकल्चर करना पड़ेगा. मतलब मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज कट द फॉरेस्ट. अगर मैं फॉरेस्ट को कट करने की बात करता हूं, मतलब ही मैं डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहा हूं. देखो, फॉरेस्ट को ग्रो होने के लिए काफ़ी साल लगे. ये जो अभी मैंने ट्रीज भर के रखे हैं, इसको होने के लिए बहुत टाइम गया है, और कट करने को लगेंगे 1-2 दिन. सो व्हाट इज द मेन पॉइंट ओवर हियर? डिफॉरेस्टेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जस्ट फॉर वन पॉइंट, दैट इज एग्रीकल्चर. फिर हमें मालूम पड़ता है कि बॉस एक ऐसी जगह भी है फॉरेस्ट के बीचों बीच है विच इज़ हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ मिनरल. सो ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया ये है मिनरल एरिया. सो यहाँ पे मिनरल्स अगर है तो यहाँ पे होगा माइनिंग एक्टिविटी. अगर माइनिंग एक्टिविटी होगा, जस्ट इमेजिन इतना सारा फॉरेस्ट एरिया, ये तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन साइड का भी निकालना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज मिनरल्स का यूनिक स्पेशलिटी है. जहाँ पे मिनरल्स होते हैं, अगर यहाँ पे मिनरल है तो मुझे उसको निकालने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया डिग करना पड़ेगा. आई विल नीड टू डिग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया. इसका मतलब इसके ऊपर जो फॉरेस्ट था, जो भी इसके ऊपर फॉरेस्ट था, वो क्या
डिफॉरेस्टेशन के लिए फोकस किया जाएगा. दैट मीन्स इतना सारा एरिया वाइप आउट किया जाएगा. सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ह्यूमन एक्टिविटीज. सो दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज आई एम टॉकिंग ऑफ. पॉपुलेशन इज अ मेजर फैक्टर. फर्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एग्रीकल्चर बढ़ेगा. हम इसके वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. टेक्नोलॉजी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो मुझे मिनरल्स चाहिए, इसे मुझे माइनिंग करना पड़ेगा. अगर माइनिंग करना पड़ेगा देन दैट मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा एरिया. सो ये दो फैक्टर्स साथ साथ ये वाला फैक्टर. सो 3 फैक्टर्स आर द बेसिक फैक्टर्स बाय विच द एरिया अंडर फॉरेस्ट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. मोर ओवर कुछ जगहों पे आपको ये भी मिलेगा दैट वी वेर अ पार्ट ऑफ कॉलोनी. ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज किया. सो उन्होंने जब कॉलोनीज बनाए थे, सो एक बात सोचिए, वो इंडिया में मकसद से आए थे. दे हैड सम इंटेंशंस टू अर्न प्रॉफिट. सो जब भी कोई फॉरेन कंट्री जैसे कि यूके ने अपने पर जब राज किया था, व्हेन दे वर ट्राइंग टू कॉन्कर अस, देयर ओनली कंसर्न वाज ये जो भी प्लांट्स है, जो भी ट्रीज है, वो इकोनॉमिकली फायदे के होनी चाहिए. सो फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फॉर इकोनॉमी आई विल प्लांट स्पेसिफिक ट्रीज. दैट मीन्स मैं ऐसी ट्री को यहाँ पे प्लांट करूंगा जो मेरे फायदे के लिए होगी. अगर मेरे फायदे के लिए ट्री में प्लांट करूंगा तो यहाँ पे जो बसे हुए ट्रीज है जिसके साथ एक बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, वो पूरा सिस्टम कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स दिस ट्रीज हुएवर आर प्रेजेंट ओवर हियर आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विद ए यूनिक बायोडाइवर्सिटी. सो इतनी बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों हटा रहे हैं? बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज. मुझे क्या चाहिए? और ज़्यादा पैसा चाहिए. तो और ज़्यादा पैसा करने के लिए मैं यहाँ के जो ये ग्रीन वाले पेड़ है वो उनको निकाल के यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा ब्लू वाले पेड़ों से. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यस, करेक्ट. मेरे एक सेल्फिश एक्ट के लिए मैंने क्या किया, और भी कुछ ट्रीज को चॉप डाउन कर दिया और कुछ और ट्रीज को प्लांट करना शुरू किया. सो दैट मीन्स मैंने क्या किया? आई हैव डैमेज द इकोलॉजिकल पैटर्न एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द गिवन एरिया. So students, we will see more in detail how we are undergoing deforestation with unique numbers. Before that, so we have already seen what कैसे हो रहा है deforestation. So नंबर के हिसाब से देखते हैं, that is vanishing forest. मतलब वही बात होगी कि भाई फॉरेस्ट कम हो रहा है. So forest and tree cover in India is about 78.92 million hectares. 24.01% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, ये अगर पूरा इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है तो उसमें से 24.1% इज अंडर फॉरेस्ट. और उसमें इसके अंदर डेंस फॉरेस्ट है 12.24, ओपन फॉरेस्ट है 8.99 एंड मैंग्रोव्स है 0.14%. मैंग्रोव्स वो चीज़ होती है जो आपको हमेशा कोस्ट के पास मिलेगी. अगर मैं यहाँ पे इंडिया ड्रॉ करूँ, ये वाला जस्ट फॉर रेफरेंस सेक, तो आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पास और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पास आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे. सो मैंग्रोव्स बेसिकली डेवलप ओनली इन अ कोस्टल एरिया. सो दैट्स ए जोग्राफिकल एरिया वाला पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज डेंस फॉरेस्ट. The dense forest is increasing because of efforts taken by various organizations. बहुत से organizations है जो efforts ले रहे हैं और it has increased by 10098 square kilometer. 10098 square kilometer से बढ़ चुका है from 1997. After that, students, now let us try to understand the levels at which the extinction takes place. So मैंने एक scale बनाया है. This is a scale basically. यहाँ पे है normal population और कैसे एक पॉपुलेशन धीरे 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 एक्सटिंक्ट की ओर जाता है. सो अगर मैं नॉर्मल से स्टार्ट करूं तो ये वो लोग हैं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है. सो इनका पॉपुलेशन भी बहुत नॉर्मल है, काफ़ी अच्छे से पॉपुलेशन दिखता है, जैसे कि कैटल, पाइन ट्रीज, साल ट्रीज, रोडेंट्स. ओके, दैट मीन्स मुझे कोई खास कंसर्न नहीं होगा रिगार्डिंग नॉर्मल पॉपुलेशन. जैसे ही मैं जाता हूँ एक पॉइंट आगे, वो है एंडेंजर्ड. नाउ ऐसे कोई कंडीशंस होंगे. सो कंडीशंस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? एक ही कंडीशन कॉमन है, या तो उनका खाना या तो उनका हैबिटेट. सो खाना मतलब हम प्रे भी बोल सकते हैं. आइदर द प्रे और द हैबिटेट इज डिक्रीजिंग. ये डिक्रीज क्यों होगा? ये डिक्रीज तभी होगा जब ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज होंगे. So human activities
आर एवर इंक्रीजिंग, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, सच एज पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, टू नेम सम ऑफ देम. सो इन लोगों की वजह से इनका खाना और इनका घर नष्ट हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन ये नॉर्मल से एंडेंजर की ओर आएंगे. जैसे ही एंडेंजर की ओर आएंगे तो इनका पॉइंट हो जाता है दे आर हैविंग अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. मतलब अगर ठीक से चेक पे नहीं लाया जाएगा, अगर उनके जो फैक्टर्स है उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो ये डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. इनका पॉपुलेशन ऐसे ही कम होना शुरू रहेगा. जैसे उनका पॉपुलेशन भी कम हो रहा है, अगर ऐसे ही कंटिन्यू होगा तो एक दिन ये भी क्या हो जाएंगे, बाकी के जानवरों की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. एग्जाम्पल्स आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल मैकव and Sangai is a brown antlered deer found in Manipur. So these are the animals which are having the endangered list right now in India. Vulnerable, that means endangered से भी थोड़ा बेकार सिचुएशन हो गया, मतलब ये ज़्यादा खराब सिचुएशन है. So population which has declined to levels of endangered category, जो population इधर आ चुके थे और अभी इधर की ओर बढ़ रहे हैं, those are vulnerable animals. So इनका नियर फ्यूचर में रेयर की ओर जाना तय है. मतलब हम लोग इन एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल नहीं ला रहे. एग्जाम्पल्स आर ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन. गंगा में जो पानी वाला डॉल्फिन है ये वो वाला डॉल्फिन है. ओके, सो रेयर अभी आता है रेयर. सो पहले हमने देखा नॉर्मल, फिर देखा एंडेंजर्ड, फिर देखा वनरेबल. मतलब एक अलार्म सॉर्ट ऑफ बनना शुरू हुआ था. अलार्म का हमने आंसर नहीं दिया और आ गया अभी रेयर सिचुएशन. मतलब पॉपुलेशन वाकई में रियलिटी में भी कम होना शुरू हो चुका है. इनका पॉपुलेशन काफ़ी कम होता है और वो और कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो स्मॉल पॉपुलेशन डिक्रीजिंग फर्दर. एग्जांपल्स आर हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल्स. नाउ और एक लेवल आगे जाता है, दैट इज एंडेमिक, द फाउंड इन स्पेसिफिक आइसोलेटेड एरियाज. एक सीधी सी बात है, हर बर्ड, हर एनिमल, हर प्लांट का एक स्पेसिफिक एरिया में ही ग्रो होना ज़्यादा बेटर होता है. हम लोग एक 60 इयर्स पीछे जाते हैं तो इंडिया वाज अ क्वाइट अ फॉरेस्ट एरिया. दैट मीन्स टुडे दैट फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, द कवर इज डिक्रीजिंग. अगर कवर डिक्रीज हो रहा है तो अगर ये फॉरेस्ट कवर था, अगर इतना फॉरेस्ट कवर था स्टूडेंट्स, तो दिस इज डिक्रीजिंग. दैट इज द रीजन, द पॉइंट इज आइसोलेटेड. ये लोग आइसोलेटेड नहीं है स्टूडेंट्स. पहले ये लोग राज किया करते थे लेकिन आज राज नहीं कर पा रहे, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज ने ये फॉरेस्ट के 3 लाइन्स को कम कर दिया. एक छोटा सा पार्ट बच गया है. इसीलिए पॉइंट है स्पेसिफिक, इसीलिए पॉइंट है आइसोलेटेड एरियाज. ऐसे क्यों हो रहा है उसके काफ़ी रीजंस मैंने आपको बता दिए. कुछ रीजंस ये भी है दैट इज़ नेशनल बैरियर्स एंड जोग्राफिकल बैरियर्स है. उनका जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होने चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस जो मेंटेन होना चाहिए, अगर वो बैलेंस नहीं होगा, थोड़ा भी क्लाइमेटिक चेंज उनको अफेक्ट करेगा और उनके जो तरीके हैं जीने के वो सब टूट जाएंगे. सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न दैट पॉपुलेशन इज अगेन डिक्रीजिंग. इसमें है अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग एंड मिथुन दैट इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश. सो ये एनिमल्स पहले ही एंडेमिक हो चुके हैं, बिकॉज ये देखो ना, अंडमान, निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, ये एरियाज खुद ही इतने स्मॉल है. दिस स्टेट्स, दिस यूनियन टेरिटरीज आर सो स्मॉल कि इनके अंदर पहले से ही एरिया कम है, उसमें पॉपुलेशन भी है और उसमें ये एनिमल्स भी रहते हैं. दैट मीन्स इनके पास वो कंडीशंस वहीं पे है और वहीं पे उनका ग्रोथ होना पॉसिबल है. सो दे कैन नॉट ग्रो इन द एंटायर इंडिया, rather in entire world or on earth. They can be found only in these specific areas. Now we come to the last one, that is extinct. इसका मतलब अलार्म बज के हो गया, बता के हो गया, प्रवचन हो गए कि भाई एनिमल्स को बचाओ, उनके हैबिट को बचाओ, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तब जाता है एक्सटिंक्ट लेवल. यहाँ पर जो पॉपुलेशन मिलना चाहिए था वो रिसर्च करके, नॉट रिसर्च, रिसर्च बार बार सर्च करके भी हमें
वो पॉपुलेशन उनका किधर भी नहीं मिला. आई डिडंट फाइंड एनी 1 or 2 स्पीशीज ऑल्सो ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट एनीवेयर इन 2 एरियाज. या तो उनके हैबिटेट पे ढूंढिए या फिर और कई एरियाज जहाँ पे वो कभी कभी दिखे थे. अगर मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे देन व्हाट इज द कंक्लूजन कि वो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इसमें लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट, अर्थ, मतलब ये अगर एक्सटिंक्ट होते हैं तो पूरे अर्थ से गायब होते हैं. पहले लोकल एरिया से गायब होते हैं, फिर रीजनल, फिर कंट्री एंड देन कॉन्टिनेंट. इसमें एग्जांपल्स है एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक. नाउ हियर यू कैन सी सम पॉइंट्स रिटन फॉर द एशियाटिक चीता. 20th सेंचुरी के पहले काफ़ी अबंडेंस में थे एशिया एंड अफ्रीका के अंदर. इनका विलुप्त होने का मेजर कारण है उनका हैबिटेट एंड प्रे. 1952 ईयर में इंडिया में इट वाज डिक्लेयर्ड दैट एशियाटिक चीता इन इंडिया इज नो मोर फाउंड एंड इट इज़ द फास्टेस्ट लैंड मैमल. इट कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स पर आवर. 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकता है. सो दैट्स द वे how a population of a particular species starts degrading from normal to endangered, endangered to vulnerable, vulnerable to rare, rare to endemic and endemic to extinct. So we have already seen why deforestation is taking place. Let us have a detailed answer on this. Let us try to understand the concept what is based on deforestation. सबसे पहला पॉइंट तो ये है दैट नेचर इज ऑफन कंफ्यूज्ड एज अ फ्री गिफ्ट, यू नो, एंड इट्स एन एटीट्यूड कि हमको क्या फर्क पड़ता है. वी आर गेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ले लो नेचर से इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट से ले लो, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड यूज करो. What does it matter to us? That is a basic attitude problem what we have. So directly, indirectly, directly or indirectly, we are been using the resources. Okay, so what does that mean? We are also responsible for some of the other ways of deforestation. So let us start one by one point. First major point is the history is the evidence that during the colonial period, in the colonial period, students, we were having a very important point, that is enrichment plantation. See, जैसे मैं बोलता हूँ enrichment plantation, उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि मुझे कमर्शियल पर्पस के लिए किसी एक प्लांट को प्लांट करना है और मुझे उसके लिए जगह चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली वहाँ पे मौजूद जो प्लांट्स है उनको वहाँ से निकालूंगा. प्लस मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे कमर्शियल फ़ायदा चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए. सो आई विल बी कंसिडर लॉट्स ऑफ रेल्स, रोडवेज, इंडस्ट्रीज, माइनिंग एक्टिविटीज़, and I will be also doing something known as lots of agricultural activities. तो ये सब होना किसने शुरू किया? कॉलोनियल पीरियड ने शुरू किया है, मतलब तभी आने वाले ब्रिटिशर्स ने ये सब शुरू किया है. तो इन्होंने क्या विड्रॉ किया होगा? फॉरेस्ट विड्रॉ किया होगा, वो हमने पहले ही देखा है इन डायग्रामेटिक फॉर्मेट. प्लस इन्होंने और एक चीज़ लाई यहाँ पे, एन आयरोनिकल स्टेटमेंट, दैट इज उन्होंने स्टार्ट किया है enrichment plantation. Enrichment plantation was done in, अगर मैं ये इंडिया बनाता हूँ तो ये कहाँ का अफेक्ट होता था? सबसे पहला इसने अफेक्ट किया है सदर्न फॉरेस्ट को. सो नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वेर बीन रिप्लेस्ड बाय टीक मोनोकल्चर. सो साउथ इंडिया के पास था नॉर्मल नेचुरल फॉरेस्ट, दिस वॉज रिप्लेस्ड बाय टीक मोनोकल्चर. So what is a
एनरिचमेंट प्लांटेशन, टीक मोनोकल्चर किसको रिप्लेस कर रहा है? नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। उसके साथ साथ इट वाज आल्सो एप्लीकेबल फॉर हिमालयन फॉरेस्ट। सो हिमालयन फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो ये हुआ आपका हिमालयस फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश एंड देन दी पूर्वांचल्स। ओके, सो इसमें 3 लोग हैं। सो ये somewhat like this is your Himalayan area. So in Himalayan area, so the plant which was being brought over here was Shir pine. तो इसने किसके ऊपर आके फोर्स किया? He is trying to replace the Himalayan oaks, the Himalayan oaks and the Rhododendron forest. So he is focusing on the Himalayan area, और यहाँ पे उसने किसको रिप्लेस किया? Himalayan oaks and RHO RHO DEN forest. So 2 लोगों को रिप्लेस किया by tree pine and teak monoculture in the natural forest of South India. So that's how it is affecting your इंडियन फॉरेस्ट जो नॉर्मल अपना वेजिटेशन कवर हुआ करता था इन द कॉलोनियल पीरियड। इसके साथ साथ लेट्स हैव द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपांशन। मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स दैट फूड इज अ बेसिक नीड, खाना तो चाहिए। सो 1951 से लेकर 1980 फ्रॉम द ईयर, in these years basically what they had done is they have withdrawn 26,200 square kilometer का forest, 26,200 square kilometer का forest area is already been wiped out. ये इतना वाइप आउट होना शुरू हुआ कि दिस इज अफेक्टिंग डिफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा होना शुरू हुआ। ये क्यों हो रहा है? बेसिकली स्टूडेंट्स फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन मुझे वो एरिया में क्या करना है? आई वांट टू स्टार्ट डूइंग क्रॉपिंग एंड फॉर कमर्शियल दैट इज कैश क्रॉप्स। सो एक तो खाना है और एक है कैश क्रॉप्स। खाने को हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स। आई होप यू आर नोइंग अबाउट इट। इसको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। सो सी ना अगेन द सेम, अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब मैं खाना जो खा रहा हूँ उसने भी डिफॉरेस्टेशन करवाया है। सो यू डोंट थिंक कि आपने नहीं किया है, यू आर वेरी डिसेंट, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं इन द एक्टिविटी ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ट्राइबल पीपल। सो ट्राइबल पीपल आर डूइंग झूम कल्टिवेशन which degrades the area. I will teach you how it is. See, tribal people basically इतने खास पढ़े लिखे लोग तो नहीं होते। They do झूम cultivation which degrades the area. कैसे होता है ये? So let us assume ये कोई एरिया है, ओके, और इसमें मैं ग्रीन कलर भरता हूँ which is just telling us कि यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट है। So I'm not drawing trees, I'm just filling the green color. And this is the forest area. ऐसा और एक एरिया है, let this be area A, let this be area B. B में भी बहुत सारा फॉरेस्ट है, a dense network of forest. Now think, ट्राइबल लोगों को झूम कल्टीवेशन, मतलब व्हाट इज झूम, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उनको यहाँ पे कल्टीवेशन करना है, उनको अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज को खाना खिलाना है, तो वो आके यहाँ पे पहले नजर मार के जाएंगे कि भाई हाँ ए और बी के पास फॉरेस्ट एरिया है, दैट टेल्स देम दैट दिस सॉइल इज क्वाइट फर्टाइल, मतलब मैं इसमें क्रॉपिंग कर सकता हूँ। तो वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो फॉरेस्ट कवर को कट करना शुरू करेंगे। दे विल स्टार्ट स्लैशिंग द फॉरेस्ट। या तो वो स्लैश करेंगे या तो उनके पास दूसरा शॉर्टकट है। सी, दे डोंट हैव मॉडर्न टूल्स, उनके पास मॉडर्न टूल्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इसको या तो पूरा जला देंगे, दे विल बर्न इट। सो व्हाट इज हैपनिंग? स्लैश करो या जलाओ, किसी भी हालत में हो क्या रहा है? डिफॉरेस्टेशन। अभी डिफॉरेस्टेशन कर रहा था ए के ऊपर,
सो बी की अभी तो बारी नहीं आई है, फॉरेस्ट कवर कम होना शुरू हो गया एंड फायर एंड बर्निंग की वजह से उसके अंदर का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेंट कम हो गया। सो ये किसके अंदर कम हो रहा है स्टूडेंट्स? इट इज डिक्रीजिंग इन द सॉइल। इसका मतलब स्टूडेंट्स जूम कल्टीवेशन का पहला स्टेप स्लैशिंग एंड फायर और बर्निंग द एंटायर एरिया इज लिविंग दैट सॉइल हाईली इनफर्टाइल, बिकॉज उसके अंदर का जो ह्यूमस कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट है वो सब क्या हो गया है? खत्म हो गया। सो अभी क्या होगा? अभी यहाँ पे आके वो लोग क्रॉपिंग करेंगे। सो दे विल स्टार्ट द क्रॉपिंग, बट प्रोडक्शन विल बी, बट प्रोडक्शन इज लेस। अगर प्रोडक्शन ही कम मिलेगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ साल यहाँ पे रहेंगे और कुछ सालों के बाद किसी और एरिया के चक्कर में जाएंगे एंड दैट इज द न्यू एरिया बी। आई होप द पॉइंट इज नाउ क्लियर। तो अभी दिखेगा कैसे? सो ये पकड़ लेते हैं ये पूरा आंसर, लेट दिस बी स्टेज 1। सो स्टेज 1 में ए और बी ऐसे थे। स्टेज 2 में जैसे ही इन्होंने एक्टिविटीज शुरू किया, ए के अंदर कोई फॉरेस्ट है ही नहीं, अभी बी के पास फॉरेस्ट है। सो स्टूडेंट्स इमेजिन करो, यहाँ पे एक 3-4 साल बाद या फिर 1-2 साल बाद, आफ्टर सम इयर्स दे विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन विच एरिया स्टूडेंट्स? बी एरिया। अभी बी के पास आएंगे वो लोग, तो बी के पास क्या करेंगे? सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। मतलब कुछ सालों के बाद वापस एक बार ए और बी आएंगे, अभी B is having very less amount of forest or I can say few trees here and there, और A के पास कहाँ जाके अभी थोड़ा सा ग्रोथ होना शुरू हुआ है। So I hope the point is clear. Because of this activity that is zoom cultivation or shifting cultivation, what is happening? Slash and burn cultivation is taking place और ये पूरा एरिया क्या होते जाएगा? It will start getting degraded. यहाँ पे deforestation काफ़ी ज़्यादा एक्ट होगा। ओके, सो दिस इज, सो लेट अस सी एग्जैक्टली ये होता कहाँ है। सो अगर मैं इंडिया, अगेन आई विल एम्फसाइज कि ज्योग्राफी जब भी पढ़ते हैं अब हमेशा इंडिया के स्टेंसिल्स बनाए और उसमें से ही पढ़ना शुरू करें। सो दिस इज द इंडियन पार्ट, आई एम ड्रॉइंग ओनली दैट पार्ट ऑफ इंडिया विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। सो नाउ द फोकस विल बी एग्जैक्टली सर ये होता कहाँ पे है? सो इट इज हैपनिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इन सेंट्रल इंडिया। सो ये है दो पार्ट्स, एक है नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको आज भी काफ़ी हद तक आइसोलेटेड एरियाज मिलेंगे जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा, एंड दिस इज योर सेंट्रल इंडिया। सो सेंट्रल स्टेट्स में ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एरिया ज़्यादा मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये स्टेट्स मिलेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज अफेक्टिंग योर deforestation. So the next point after this is we will focus on the large scale development. So ये तो चलो ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन है तो इन्होंने थोड़ा सा एरिया अफेक्ट किया, वैसे भी अगर आप फोकस करें तो इनका पॉपुलेशन है ही कितना। सो अभी हम लोग स्मॉल स्केल पे थे, अभी हम जा रहे हैं लार्ज स्केल। अगर लार्ज स्केल डेवलपमेंट की बात करें तो फर्स्ट वन थिंग विच कम्स टू माई माइंड इज mining activity. So this is your large scale development. Yeah, that means बड़े बड़े एरियाज को किसी न किसी पर्पस से डिफॉरेस्टेशन के लिए फोकस किया जाएगा। So in 1951, so 5,000, so 1951 में 5,000 square kilometer, it's a big area sir, it's a big area. 5,000 square kilometer area was being used to develop new river valley projects. So river valley projects जो होते हैं, बड़े बड़े projects जो आते हैं, इनका तो काफ़ी हद तक commercial use होता है।
इसमें से वन ऑफ द एग्जांपल्स आई कैन गिव टू यूज इन नर्मदा सागर प्रोजेक्ट. द नर्मदा सागर, सागर मतलब रिजर्वोयर. ओके, सो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश में 40,000 एकर्स, 40,000 acres of forest area was being cleared. So that itself tells me that we are not really serious about conservation of forest, isn't it? So now after this point और एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट के लिए पॉइंट आएगा माइनिंग एक्टिविटी. So students, if you are getting questions which are based on large scale development effects of deforestation, so ये पॉइंट्स आएंगे. जो एग्रीकल्चर है वो भी आप पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके, सो नाउ माइनिंग एक्टिविटीज़. अच्छा, माइनिंग एक्टिविटीज़ का जब भी नाम आता है तो हमेशा क्लैरिटी रखिए कि दिस एक्टिविटी विल बी डन ओनली इन दी प्लेटो जोन्स. बट राइट नाउ व्हाट आई गॉट फॉर यू इज, हमने ये पहले ही किया माइनिंग वाला भी आंसर. सो राइट नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज द मेजर पॉइंट दैट इज इन वेस्ट बंगाल. सो अगर वेस्ट बंगाल ड्रॉ करूँ तो दिस इज हाउ वेस्ट बंगाल इज. It goes still here near Assam. It is along the borders of Bangladesh, and this is the Sundarbans of your Ganga. So this is the West Bengal state. वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही मौल्यवान मिनरल मिलता है, दैट इज डोलोमाइट. क्या मिलता है? डोलोमाइट, MITE. नाउ यहीं पर लोकेटेड है द इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, सुंदरबन टाइगर्स, दैट इज बॉक्सा टाइगर रिजर्व. See, tiger is an easy victim. We have been knowing that tiger conservation is very very important. So एक important point ये भी आता है कि फॉरेस्ट के साथ साथ हैबिटेट भी बचेगा. सो हैबिटेट मतलब टाइगर. सो टाइगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल. सो थोड़ा क्लिक होता है पॉइंट कि यस, टाइगर के लिए उसका हैबिटेट चाहिए और हैबिटेट के लिए फॉरेस्ट चाहिए. सी दैट इज द लिंक. सो इसीलिए अ ह्यूज एरिया विल बी अंडर कंजर्वेशन. But that area is also having a conflict with the area of dolomite mineral. मतलब अभी मैं जो रेड बना रहा हूँ, see how it is affecting. अगर डोलोमाइट यहाँ पे कहीं मिल रहा है तो ये इसको निकालने के लिए मुझे बाजू वाला जो बक्सा का जो एरिया है जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स है, मुझे वो एरिया को भी क्लियर करना पड़ेगा. सो दैट एरिया विल बी इन ग्रीन. सो दिस एरिया इज द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. So what is happening students? The area will always keep on increasing. और कहीं और रिसोर्स मिल गया, और रिसोर्स मिल गया. सो कमर्शियल इंपॉर्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, जितना हम लोग पैसे के बारे में सोचेंगे, उतना वी विल बी लेस कंसर्न्ड ऑफ टाइगर. सो दैट इज द नेचुरल फेनोमेनन व्हिच हैपेंस ना, कि भाई मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों इसके बारे में सोचूं. लेकिन वो गलत है, बिकॉज वो उनका हैबिटेट है और इसी से हमको फॉरेस्ट मिलेगा. सो दैट इज हाउ इट इज अफेक्टिंग द एरिया. इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग ए यूनिक प्रॉब्लम. सी यहाँ पे सुंदरबंस है, दिस इज सुंदरबंस, और यहाँ पे बंगाल टाइगर तो बहुत फेमस है. यू मस्ट हैव सीन मेनी वेरियस मूवीज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज अ माइग्रेटरी रूट. यहाँ पे बहुत से बर्ड्स, यहाँ पे बहुत से एनिमल्स माइग्रेट करते हैं. अगर यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी चलेगा जोरों शोरों से तो यहाँ पे बहुत सा पोल्यूशन होगा, विच विल क्रिएट अ natural block for the migratory routes. So यहाँ पे दो चीज अफेक्ट होते हैं. One is the natural habitat and one is the migratory route. So blocking of the migratory route. इसमें सबसे मेन विक्टिम है अपना इंडियन एलिफेंट, द ग्रेट इंडियन ओके. नाउ इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सच एज ओवर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन.
अगर ओवर ग्रेजिंग होती है, मतलब गाय भैंस और बकरी, सो गाय भैंस बकरी क्या करेंगे, ग्रेजिंग करेंगे। अगर ओवर ग्रेजिंग होगा तो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन नाम की चीज होगी, बिकॉज वी विल इंक्रीज द एरिया अंडर पैस्चर्स। इसके साथ साथ होगा फ्यूल, वुड कलेक्शन। ना एक कॉमन सेंस की बात देखिए, फ्यूल वुड कुछ ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं करता, बिकॉज हम पूरा का पूरा पेड़ तो नहीं कट करेंगे, हमको भी बहुत दिनों तक फ्यूल वुड यूज़ करना है। बट इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्राइबल पीपल एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज दैट येस यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग डिफॉरेस्टेशन। आई कैन टॉक ऑफ अ प्लांट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट नाउ। इसका नाम है हिमालयन यू। हिमालयन यू। सो ये मिलता है इन द हिमालयन एरियाज। So in this Himalayan area, we are finding a very important medicinal plant known as Himalayan yew. It's a very important medicinal plant. See how you should remember. ये जहाँ पे टर्न मार रहा है, वहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। See that's how it becomes interesting and easy and much more fun to learn geography. मैंने इंडिया ड्रॉ कर दिया, मुझे मतलब साउथ इंडिया का कुछ काम तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन दैट गिव्स एन इम्पैक्ट कि ये दिस इज हिमालयन एरिया। मुझे सारा हिमालय ड्रॉ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये देखना कि भाई अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे जहाँ पे शिवालिक्स है, यहाँ पे जहाँ पे शिवालिक्स है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ हिमालयस, वहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। सी हाउ इजी इट बिकम्स। ये दोनों स्टेट्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों स्टेट्स के पास ये प्लांट मिलता है। वो कौन सा प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। उसमें एक चीज पाई जाती है नोन एज टैक्सोल। Now taxol is being found in the barks, needles and twigs and roots of this plant. ये किस किस चीज में मिलता है, अगर ये वो प्लांट में बनाता हूं, अगर ये वो प्लांट है, तो उसके रूट्स में, उसके बाक्स में आपको सब जगह पे मिलेगा वो। So I'm finding taxol in barks, in twigs, in needles, as well as in the roots of this plant. This is your plant yew. So मुझे ये सारी चीजें चाहिए। ये मुझे चीजें क्यों चाहिए, बिकॉज इससे होता है कैंसर ट्रीटमेंट। इससे एक बहुत बड़ी चीज मिलती है टैक्सोल, विच इज यूज इन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। सो अगर मुझे ट्रीटमेंट करवानी है कैंसर, इट्स अ डेडली डिसीज, मतलब इसका डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सी अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये जो व्यू नाम का जो प्लांट है, इट्स अ स्पेसिफिक प्लांट। ये आपको सब जगह पे नहीं मिलेगा। इसका हैबिटेट बन जाता है हिमालयन एरियाज, मतलब हिमालय का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है यही उसको सूट करते हैं। अभी ऐसे कंडीशन सब जगह नहीं मिलेंगे, वो हिमालय के भी दो जगह पे ही मिल रहा है, दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। मतलब इसका डिमांड इतना बढ़ जाएगा कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हेंस यहाँ पे रेड में लिख रहा हूं मैं, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सो वंस आई रेड दिस वर्ड, इसका मीनिंग ये हो गया, भाई हमको मिल रहा है ना ये ड्रग, बस खत्म, आई नीड दिस केमिकल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, जितने भी चाहिए उतने पेड़ कट करो। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसका होगा डिप्लीशन। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश आर ड्राइंग आउट। वो जितने ड्राई हो जाएंगे, वो जितने मरना शुरू हो जाएंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
it is not going to be beneficial for even the Indian government. So what should we learn from this? We should also do plantation of the same tree. Otherwise ये particular tree क्या हो जाएगा, particular plant क्या हो जाएगा, काफ़ी एक समय के बाद विलुप्त होना शुरू हो जाएगा. Now we will also try to see how exactly, what is happening exactly to the deforestation levels. Before that, please take the note. So let us see now the reasons or the factors causing environmental destruction. We have just seen the factors causing deforestation. We are now going to see what are the reasons that is going to cause environmental destruction. सबसे पहला पॉइंट ये आएगा ओवर पॉपुलेशन. फर्स्ट मेजर पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन रहेगा तो डिमांड बढ़ता जाएगा. डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई करने के लिए उन प्रोडक्ट्स के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, विच इज गोइंग टू कॉज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, ये सारे रीजंस है बाय विच वी विल बी हैविंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. सो आप ये एक कारण की वजह से आगे के रीजंस आएंगे, दैट इज हैबिटेट, वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. सेकेंड आई कैन से हंटिंग, उसके साथ साथ होने वाला ट्रेड ऑफ व्हाट, वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. पोचिंग, दैट इज इलीगल हंटिंग, मतलब उन लोगों को मारना जो रिजर्व्स में है, कुछ भी करके उनको अपना स्वार्थ से मतलब है, विच इज वाई वी आर फेसिंग ऑल दिस इश्यूज. इनका भी ट्रेड होता है. नेक्स्ट इज पोल्यूशन, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. नेक्स्ट इज पॉइजनिंग. सो पॉइजनिंग मीन्स व्हाट, इंटेंशनल पॉइजनिंग, किसी भी तरह से किसी का नाम भी ना आए एंड फायदा भी हो जाए. सो इंटेंशनल पॉइजनिंग. फॉरेस्ट फायर्स, all these are going to cause degradation, environmental destruction. Over utilization, or I can say over exploitation of resources. So you can see over here, ये सारे तो फैक्टर्स है, उसमें सबसे मेन तो पॉपुलेशन ही है. अगर डिमांड ही नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा. आई कैन से लाइक दिस दैट डिमांड इतना कैसा है वो कंपैरिजन करने के लिए वी विल डू वन थिंग. वी विल टेक सम रिच पीपल एंड वी विल कंपेयर देम विद द पुअर पीपल ऑफ इंडिया. सो इंडिया के मैं 5% रिच पीपल लेता हूँ और ये लोग जितना रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है. दे आर क्वाइट ग्रेटर देन द रिसोर्सेज विच आर कंज्यूम बाय 25% ऑफ पुअर पीपल ऑफ इंडिया. 25% जो गरीब लोग यूज़ करते हैं ना वो काफ़ी कम है, काफ़ी. इट इज़ मच लेस देन द 5% रिच पीपल हु आर कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज. बिकॉज ये जो डिमांड होती है, ये सारी डिमांड कहाँ से आती है, अमीरों के पास से आती है, और अमीरों के पास पैसा है, सो द डिमांड इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज. Okay, now the same thing I can also write the one of the most developed country, that is America, and one of the quite not that developed country, that is Somalia. Now ये दोनों कंट्रीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है. कंपैरिजन बोलता है कि अमेरिका 40 टाइम्स ज़्यादा, 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज कंज्यूम करता है. सी, जो कंट्री डेवलप करेगी, जो कंट्री डेवलप होती है कंपेयर टू अनडेवलप्ड कंट्री, उसका डिमांड होता है, उसके पास इंडस्ट्रीज होते हैं, उसके पास माइनिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके पास पॉपुलेशन है, उसके पास काम है. दैट इज़ अ बेसिक रीज़न कि ये लोग के पास ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होने के ऑप्शन है कंपेयर टू नॉट दैट डेवलप्ड कंट्री, दैट इज सोमालिया. सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड कि इंडिया के साथ क्या क्या हुआ रहेगा. इंडिया का हाफ, मोर देन हाफ, इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ इट्स नेचुरल फॉरेस्ट is already degraded.
is already being gone. 70% of the water, 70% of the surface water is polluted. What is surface water, students? Rivers, lakes, ponds, tanks are the surface water sources. They are already being polluted. 40% of mangroves are wiped out. मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था, तो उतने अभी मैंग्रोव्स बचे नहीं हैं. Mangroves are very important to hold the soil and they are already been wiped out. कितना? 40%. That's an alarming rate. इसके अलावा we are also having lots of trade activities in which hunting, though it is prohibited, this is like कहने की बातें हैं, hunting is prohibited, but hunting की वजह से trade activities चलते हैं, and that's how it is going to cause an environmental destruction. Now let us try to see what are the effects of deforestation. सबसे पहला इफेक्ट होगा बायोलॉजिकल लॉस एंड बायोलॉजिकल इश्यूज. देयर आर वेरियस बायोलॉजिकल कंडीशंस व्हिच विल बी रेज्ड. जैसे काफी बार रिपीट होता है ये पॉइंट, दैट इज हैबिटेट चेंज होना. दिस इज लाइक यू आस्किंग मी टू कम एंड स्टे एट योर प्लेस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. यू कमिंग एट माई प्लेस, हाँ एक आध दो दिन के लिए ठीक है, बट फॉर एवर नॉट पॉसिबल. सो जैसे हमको प्रॉब्लम होता है वैसे ही एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होता है. इट इज बायोलॉजिकल लॉस, बायोलॉजिकल इश्यूज, loss of cultural diversity. This is affecting the people who are staying in the forest area or simply called as tribal people. So tribal से problem होगा. So एक काम करते हैं, we'll just try to understand exactly होता कैसे है. So मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक forest draw कर रहा हूँ. So पहले ये forest area बहुत बड़ा था. A dense forest और इसके बाजू में काफी सारे ट्राइबल लोग रहा करते थे. सो ट्राइबल लोगों के लिए बेसिक चीजें यहां से मिलती थी. सो दीज आर ट्राइबल पीपल. ट्राइबल लोगों के अंदर ये काम, सारे काम विमेन करते हैं. वर्क इज डन बाय विमेन. मतलब फ्यूल वुड लेके आना, कुछ खाने का सामान लेके आना, ये सब औरतें करती है, विमेन करते हैं. लेकिन जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होना शुरू होता है, ये कटिंग ऑफ ट्रीज शुरू होगा और अभी फॉरेस्ट काफ़ी कम है और काफ़ी दूर है. सो नाउ द सेम फीमेल हैज़ टू वॉक मोर डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस. दैट मीन्स शी हैज़ टू वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. This distance is as long as 10 kilometers. अगर इतना लंबा डिस्टेंस कोई औरत चलती है तो इसका सिंपल में कोई भी ह्यूमन बीइंग चलता है तो उससे होगा घर पे नेग्लिजेंस. सो इट भी घर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे एंड इसीलिए बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. घर ही नहीं, बच्चों के ऊपर भी उनका ध्यान नहीं रहेगा. So this is going to do what? इससे होगा serious social issues. ऐसा क्यों हुआ? Because उनको ज़्यादा देर काम करना पड़ रहा है. They are working for more number of hours. पहले जो काम करते थे उसके कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा चलना है, वापस उतना रिटर्न भी आना है. So due to this is happening due to working for more number of hours. Okay, that means ये तो हो गया आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट. और एक इम्पैक्ट पॉसिबल है विच इज नोन एज योर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वॉल्व्स, थोड़ा हम लोग सोच के देखते हैं, एक पहाड़ बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट बनाते हैं. ओके, ये जो फॉरेस्ट एरिया है स्टूडेंट्स, दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट
to keep intact the water cycle. वाटर साइकिल का सबसे पहला मीनिंग हो गया मॉनसून, मतलब रेनफॉल. अगर रेनफॉल इज बीन गवर्न बाय फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल है और अगर फॉरेस्ट ही कम होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट्स? जस्ट इमेजिन करो, मतलब बारिश आने में देरी होगी. अगर बारिश आने में देरी होगी तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बारिश होनी चाहिए थी, दिस पर्टिकुलर एरिया ए will have drought means सूखा. अगर सिमिलरली अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो उनके रूट्स नहीं रहेंगे. अगर आप इनको कट कर देते हो तो ये रूट्स भी कट हो जाते हैं. इसका मतलब जो भी रिवर्स होंगे, जो भी RIVERS होंगे, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कोई नहीं है. ये फ्रीली फ्लो हो सकते हैं. जब भी ज़्यादा बारिश होगी ये और ज़्यादा फ्लो होंगे, इनका मोमेंटम और बढ़ जाएगा एंड दिस विल कॉज पॉइंट ए के अंदर एरिया ए में और एक चीज़ आ सकती है, दैट इज सडन फ्लड्स और फ्रीक्वेंट फ्लड्स. सो व्हाट इज हैपनिंग? एरिया ए हो, एरिया बी हो, एरिया सी ले, एरिया डी लीजिए, जितने चाहिए होते हैं एरियाज लीजिए. ड्रॉट एंड फ्लड्स इज द बेसिक प्रॉब्लम विच विल बी कॉज्ड. इसका मीनिंग ये हो गया, ए वो एरिया था जो फॉरेस्ट के पास था, मतलब वो कोई अमीर एरिया नहीं था, कोई सिटी नहीं था, एक छोटा गांव रहेगा. दैट मीन्स दिस कंडीशंस विल लीड, मतलब यहाँ के जो लोग रहेंगे, पीपल ऑफ दिस एरिया विल कीप ऑन लूजिंग देयर इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी लूज होता रहेगा, कम होता जाएगा, it will lead to ultimately to poverty. Again, this is a very important, serious social issue. So, for us, hence it becomes very important. Hence, it is very important to maintain the quality. जो quality of life चाहिए, अगर वो वैसा चाहिए तो मुझे करना होगा forest का conservation. So वो हम कैसे करेंगे हम डिस्कस करते हैं. बिफोर दैट, सो लेट अस स्टार्ट नाउ विद द मेन टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन. द मोमेंट ऐसे कंजर्वेशन कोई नया वर्ड नहीं है हम लोगों के लिए, हमने देखा है कंजर्वेशन मतलब नथिंग बट टू प्रोटेक्ट. अब ये प्लांट्स को हम क्यों प्रोटेक्ट करें? व्हाई शुड वी डू दैट? बिकॉज इट प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इट प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो जितने भी सारे डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स जो भी है वो सब बच जाएंगे अगर मैं उनको कंजर्वेशन करूंगा. उसके साथ साथ ही अगर ट्रीज जैसी कोई चीज़ बचती है स्टूडेंट्स, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. इट इज गोइंग टू सपोर्ट माय वेरियस लाइफ सिस्टम्स. सारे के सारे लाइफ सिस्टम्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स भी कंजर्व होना शुरू हो जाएंगे. सच एज एयर, हवा भी शुद्ध हो जाएगा बिकॉज CO2 यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में और O2 रिलीज होगा. वाटर भी काफ़ी हद तक अच्छे से रहेगा बिकॉज वाटर साइकिल को सपोर्ट किया जाएगा. एंड सॉइल भी कंटामिनेट नहीं होगा अगर पेड़ प्रॉपर प्रेजेंट रहेंगे तो. पेड़ मतलब फॉरेस्ट शुड बी देयर. ओके, दिस इज फॉरेस्ट एरिया. एक ही ट्री ड्रॉ किया, दैट्स ओके. नाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स भी प्रिजर्व होगा. दैट मीन्स द वैरायटी ऑफ प्लांट्स विल बी प्रिवेंटेड. उसके साथ साथ ये एनिमल्स के हैबिटेट को भी प्रिजर्व करेगा. एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर स्पीशीज एंड ब्रीडिंग. सो हैबिटेट विल बी कंजर्व्ड. ब्रीडिंग करने के लिए जो सही माहौल चाहिए, जो सही एनवायरमेंट चाहिए, वो भी वो लोग क्या करेंगे, कंजर्व हो जाएगा. सो दिस विल बेनिफिट व्हाट? एनिमल्स. एंड दैट्स हाउ देयर पॉपुलेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. प्लांट्स का पॉपुलेशन एंड एनिमल्स का पॉपुलेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. Now, how did it all started? So, in 1960, 1970 तक उतना अवेयरनेस हो चुका था regarding conservation. So, now there are some people जो conservation करवाएंगे and they are known as conservationists. So, these people are those people. See, the only difference is I'm adding this ist in the last of conservation
they are those people who are going to act smart and give the protection to the wild animals and trees. इन्होंने स्टार्ट किया नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ स्टूडेंट्स, दो मेन चीजें हुई इंडिया में. In 1972 the Indian Wildlife Protection Act लागू हुआ. The Indian Wildlife Protection Act. That means students, now everything will be under law. अभी सब लॉ के अंदर आना शुरू हुआ. जैसे ही लॉ नाम की चीज आती है, लीगल इलीगल नाम की चीज भी आती है. That means now legally hunting is banned. अभी hunting is prohibited. अभी आप hunting legally नहीं कर सकते. इसके साथ साथ और एक चीज हुई, एक ऑल इंडिया लिस्ट लॉन्च की गई. एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ एनिमल्स हु नीड प्रोटेक्शन was been launched. अभी ये वो एनिमल्स है जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. हमने अभी भी देखा था एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना. सो जैसे जैसे स्पीशीज का लेवल बढ़ता जाएगा टूवर्ड्स एक्सटिंक्ट लेवल, दे आर गोइंग टू गेट एनरोल्ड इन दिस लिस्ट. मतलब वो नज़र में रहेंगे और हमको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. सो दीज आर दोज पीपल हु आर नियरिंग और हु आर एंटरिंग द एंडेंजर्ड level. Okay students, so students, we are seeing the all India list. The all India list is of which animal students? Protected species. What does that mean? I want to protect them and I want to conserve this species. That means मैं क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? Yes, I should do ban on hunting, prohibition on hunting, लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स बचा के रखने चाहिए. रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड ऑन वाइल्ड लाइफ, उनका ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए. अगर हंटिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड हैबिटेट्स बचाए जाएंगे तो काफ़ी हद तक काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाएंगे. सो व्हाट आर द एफर्ट्स बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट? द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने क्या किया है, नेशनल पार्क्स भी लॉन्च किए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी काफी हद तक एस्टैब्लिश किए. सो वी विल स्टडी कहाँ पे क्या क्या हुआ है. बट द मेन पॉइंट ओवर हियर इज वी आर ऑलरेडी नोन क्या नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विल बी प्रोवाइडिंग व्हाट, विल बी प्रोवाइडिंग द हैबिटेट. और यहां पर एक बार हैबिटेट मिलने के बाद उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा. Now, the central government has also done several projects for protecting specific animals. कुछ specific animals जैसे कि टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनोसेरस हुआ, कश्मीर स्ट्राइप दैट इज हैंगुल हो गया, क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल्स में अगर मैं बात करूँ तो होते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स एंड वन विच इज फाउंड इन इंडिया नोन एज घड़ियाल, GHARIAL, घड़ियाल. सो घड़ियाल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल जिसका थोड़ा मुंह जो थोड़ा लॉन्ग होता है, गंगास के पास मिलता है. नेक्स्ट इज एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग दैट इज चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दैट इज गोडवान एंड स्नो लेपर्ड. सो दीज आर द स्पेसिफिक एनिमल्स जिनके लिए क्या लॉन्च किया हम लोगों ने. सेवरल प्रोजेक्ट्स हैज बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो एफर्ट्स ले रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंजर्व मोर एंड मोर वाइल्ड लाइफ. इंटेंसिव सर्च of different conservation means and measures. We are doing lots of research, we are doing lots of searching process by which we can have different conservation processes going on. Notification of Wildlife Act 1986 में insects भी include किए गए हैं. Good ना? That means उनको भी conserve किया जाएगा. उसमें है hundreds of butterflies, moths, beetles and a dragonfly. So what have been added in 1980, 1986 में क्या क्या एडिशन हुआ, इंसेक्ट्स का एडिशन हुआ और कुछ और टाइप के इंसेक्ट्स भी ऐड किए गए. So they are now included, all these are included in the protected species. उनको किसमें ऐड किया गया है, in the protected species. In 1991 even the plants are included in the list and उसमें से 6 species are already been listed. So now we will come to a major answer, a major concept that is Project Tiger. इसलिए मैंने उसको रेड ब्लैक के शेड में लिखा है, that is Project Tiger. Project Tiger is very important
एंड प्रोजेक्ट टाइगर वॉज बीन डन बिकॉज इनिशियली उनका पॉपुलेशन था, मतलब प्रायर टू 1973 इट वॉज बीन अज्यूम्ड दे आर हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 55,000. अगर इतने टाइगर्स थे तो 1973, in 1973 it was been found out that this particular project, ये जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज पॉपुलेशन इज ड्रॉप्ड टू 1827 टाइगर्स ओनली. अगर इतना कम पॉपुलेशन हो जाएगा देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई हैव टू डू सम स्टेप्स बाय विच आई कैन कंजर्व द टाइगर्स पॉपुलेशन. इसीलिए क्या लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया. इट इज़ वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड. वेल पब्लिसाइज मतलब काफ़ी हद तक उसका अवेयरनेस है और वो पूरी दुनिया में फेमस है, विच इज़ लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर. सो काफ़ी हद के बाद एक 1985 के आसपास वी गॉट सक्सेस ऑल्सो एंड वी हैड अ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड टू 4,002. 1989 में इट वॉज काउंटेड टू 4,334. 1993 में इट अगेन ड्रॉप्ड टू 3,600. What does that mean students? मतलब there are some factors, ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है because of which the population of tiger is decreasing. तो क्या हो रहा है, poaching for trade, killing illegally, shrinking of habitat, उनका जो घर है वो कम हो रहा है, डिप्रेशन ऑफ प्रे, उनको खाना नहीं मिल रहा है, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दिस टाइगर पॉपुलेशन. उनके स्किन का ट्रेडिंग होना, उनके बोन्स से ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाना, मतलब इन चीज़ों का डिमांड बढ़ना. अगर इन चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा हंटिंग होगा बिकॉज इलीगल इट इज़ बैन. सो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे पोचिंग करेंगे फॉर ट्रेड. ओके, सो वी हैड सीन पॉपुलेशन पहले बड़ा तो था वापस कम हो गया एंड नाउ यू मस्ट बी ऑल्सो अवेयर, काफ़ी हद तक अवेयरनेस किया था सेव टाइगर. 39 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में और उनका एरिया कवर्ड है 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर. इतना एरिया इज अवेलेबल फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ टाइगर. सो लेट अस सी, अगर हम लोग इंडिया ड्रॉ करते हैं तो इंडिया के हिसाब से मुझे कहाँ कहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलेगा. सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर, विच ऑल प्लेसेस यू शुड बी एबल टू सी अ गुड अमाउंट ऑफ अ साइजेबल अमाउंट ऑफ टाइगर population. So I'm just drawing this part of India. Okay, now in this I want to show you the Corbett in Uttarakhand. So आपको Corbett मिलेगा in the Uttarakhand area. This is Nepal and this is Uttarakhand. So ये जो अपर पार्ट है ये है उत्तराखंड जोन. यहाँ पे आपको कॉर्बेट CORBET कॉर्बेट नाम का सेंचुरीज मिलेगा, नेशनल पार्क्स मिलेगा इन उत्तराखंड. व्हाट इज द मेन थिंग ओवर हियर इज इंडिया और नेपाल. India and Nepal, both countries were having good amount of Asiatic tigers. इन टाइगर को हंट करके बेचना became much more easier because उतने रूल्स नहीं थे जितने रूल्स होने चाहिए थे. दैट इज़ अ बेसिक रीज़न आपको इंडिया और नेपाल हाईएस्ट विक्टिम्स मिलेंगे फॉर पोचिंग ऑफ ट्रेड, फॉर पोचिंग फॉर ट्रेड एंड ट्रेड फॉर द स्किन एंड बोन्स. प्लस इंडिया का और एक प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ह्यूमन पॉपुलेशन. सो एंक्रोचमेंट होना भी बहुत पॉसिबल है इन देयर फॉरेस्ट एरियाज जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है. सो एनीवेज वी आर सीइंग दी प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ आपको मिलेगा, दैट इज उत्तराखंड में कॉर्बेट में मिलेगा. देन सुंदरबंस वेस्ट बंगाल. सो दिस इज योर सुंदरबन एरिया. It is in West Bengal. You will find it in Bandhavgarh in Madhya Pradesh. So मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे मिलेगा. दिस इज मध्य प्रदेश जोन. इसका नाम है BAND, that is band.
फिर आप उसको ह लगा दो तो हो जाएगा बंधव, सो HAV बंधव घर, GARH, इट इज़ व्हाट, GARH, बंधवगढ़ इन मध्य प्रदेश। We will also find in Rajasthan known as Sariska. So आपको ये मिलेगा राजस्थान के जोन में भी मिलेगा। So राजस्थान फॉल्स हियर, उसका नाम है SAR सर इसका ISKA। दिस इज इन राजस्थान। You will find it in Assam known as Manas Tiger Reserves. So Assam प्लीज़ हमेशा याद रखें ये है अरुणाचल प्रदेश, तो बीच वाला पार्ट इज़ आसाम। यहाँ पे है आपका मानस टाइगर रिजर्व, so I'm just writing Manas over here and that is in Assam. You will also find it in the Periyar Tiger Reserve in Kerala. So Kerala is over here. That's in Kerala. Okay, so जितना इंडिया चाहिए था मैंने उतना इंडिया ड्रॉ किया है. It is always for the reference purpose, and that's how the tiger conservation or Project Tiger has been launched in these zones all over India. Now let us come to the next point, students. The next point is about types and distribution of forest, that is wildlife resources. When I say types of and distribution of forest, it mainly depends. Even if I want to conserve forest, it mainly depends upon the two major factors, because most of the forest area, students, is covered or is under government authorities. तो इसका जो भी डेवलपमेंट होना है will be done by the forest department or it will be done by the government department. We can do nothing much about it, but yes, we can certainly go and support them. इसके तीन बेसिक क्लासिफिकेशंस आते हैं. इसका जो फर्स्ट है वो है रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट जैसा नाम है, रिजर्व, इट इज रिजर्व फॉर समथिंग स्पेशल एंड दैट इज टिम्बर. सो मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट एरिया, इंडिया का जो भी फॉरेस्ट एरिया है उससे हाफ से भी ज़्यादा इज अ रिजर्व फॉरेस्ट. इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट बिकॉज उस पर से मुझे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे. इट इज़ अ परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स. ये है परमानेंट फॉरेस्ट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रोटेक्शन रीजन्स. मतलब यहाँ पे टिम्बर के साथ साथ ये भी दो फैक्टर्स है. ये कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है. इट इज़ हैविंग मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया. अगर ये मध्य प्रदेश का पाई डायग्राम है तो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया में 75% इज दिस एरिया. कितना परसेंट? 75% इज अ रिजर्व फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश. और कौन से स्टेट्स है? तो जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र. सो दीज आर दी अदर स्टेट्स जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? हाई प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट मिलेगा. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. इट इज 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया. व्हाट इज इट? 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया. हाफ से ज़्यादा कौन है? रिजर्व फॉरेस्ट. उसके बाद कौन आता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन? इट इज प्रोटेक्टेड फॉर एनी फर्दर डिप्लीशन. और कुछ वहाँ पे डिप्लीशन ना हो, इसीलिए उसको क्या किया मैंने? प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि ये चीज़ें ना हो. इट इज़ फाउंड इन बिहार, पंजाब, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान. So that is your protected forest. And the next is unclassed forest or unclassified forest. These are the other forests and wastelands, and they are monitored by government authorities and private individuals and communities. So ये सब मिलके उनको संभालते हैं, या फिर दोनों संभालते हैं, या फिर कोई तो एक बंदा संभालेगा. इट इज आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट और कम्युनिटीज, जैसा भी जो भी पॉसिबल होगा. ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात. इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात. इट इज मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटीज. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट एरिया को कैसे क्लासीफाई किया गया है. वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ प्रोजेक्ट टाइगर.
वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, मैंने आपको इंडिया भी ड्रॉ के दिखाया, सो यू अंडरस्टैंड कि अलग अलग जोन्स में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह पे उसका, एंड इवन द सेंट्रल इंडिया में वी आर हैविंग द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स. प्लीज टेक द नोट्स. So now let us see how the conservation can be done by various ways. Can we participate? Can how the communities can help? All the participations will be seen now in this part. How the community and conservation is taking place. So forest is basically the home of even the traditional communities. So जो हमारे देश में जो भी traditional communities है, जो tribal लोग जिनको बोला जाता है, या फिर जो rural areas के जो लोग हैं, ये उन लोगों का घर भी है. सो इनको बचाना है और उनको चाहिए लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड. सो लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व देयर हैबिटेट्स विथ सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. सो उनको क्या करना है, अपने घर को बचाना है. सो अपने घर को बचाने के लिए जब कोई आदमी निकलता है, ही विल डू हिज मैक्सिमम बेस्ट, और अपने साथ साथ जो भी एनिमल्स है, जो भी फॉरेस्ट है, जो भी वाइल्ड लाइफ है, उसको भी वो क्या कर रहे हैं, कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इन राजस्थान, इन द सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अभी हमने देखा था, वहाँ पर विलेजर्स फॉट अगेंस्ट द माइनिंग एक्टिविटी. वहाँ पे होने वाली माइनिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया है, काफ़ी हद तक एक्शन लिया है. और क्या इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया है, दे आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट एन एक्टिविटी नोन एज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. मतलब क्या स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो भी राजस्थान एरिया है, सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग द राजस्थान पार्ट. ये जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटी होगा, माइनिंग एक्टिविटी के खिलाफ कौन लोग चले गए, विलेजर्स. कैन यू इमेजिन, विलेजर्स आर गोइंग एंड हेल्पिंग दिस. इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो स्वीट ऑफ देम दैट दे आर टेकिंग देयर टाइम आउट एंड फाइटिंग अगेंस्ट दिस पीपल हु आर डूइंग माइनिंग एक्टिविटी, एंड दे आर इंप्लीमेंटिंग ओवर देयर, दैट इज WPA. व्हाट इज WPA? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. इससे क्या होगा, माइनिंग एक्टिविटीज वहाँ पे नहीं हो पाएंगे. विलेजर्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. दे आर एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट्स. मतलब वो स्ट्रिक्टली क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को उसके अंदर आने की कोशिश करने को नहीं दे रहे. दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट्स बाय एनी वे. अलवार इन राजस्थान, वहाँ पे 5 विलेजेस है हु हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टर्स. उन्होंने क्या किया है, अलवार नाम के जोन में राजस्थान के अंदर 5 विलेजेस है, उन्होंने डिक्लेयर किया है 1200, दैट इज 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरवदेव दाकव सोनचुरी. व्हाट इज दैट? दैट्स अ नेम गिवन टू दैट एरिया. दैट इज भैरवदेव दाकन सोनचुरी. दे आर हैविंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. वहाँ पे उनके खुद के नियम है और वहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है. वहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे हंटिंग इज नॉट अलाउड. दे आर गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंक्रोचमेंट. किसी भी तरह का एंक्रोचमेंट वहाँ पे अलाउड नहीं है. सो कैन यू नोट ओवर हियर, ऑल दिस इज बीन डन बाय वेरियस कम्युनिटीज, विलेजर्स. दैट मीन्स एट अ मच लोकल लेवल पीपल आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट coming and snatching away the wildlife. So they are basically doing conservation. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स. यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है सैक्रेड ग्रूव्स. मतलब ये वो जगह है, ये वो फॉरेस्ट एरिया है जो देव और देवियों के लिए रखा हुआ है. इट्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज. तो दिस इज फॉर वाइल्ड लाइफ. लेकिन सैक्रेड ग्रूव्स का मीनिंग ये होता है एक ऐसा जोन, एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे हमारे देव लोग रहते हैं. इज अ प्लेस ऑफ आवर गॉड एंड गॉडेसेस. सो बेसिकली वहाँ पे नेचर वर्शिप किया जाता है. ये एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है. दिस इज एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ एंड प्लीज नेवर एवर गेट इन दैट बिलीव्स. इंडिया में बिलीव्स के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते. वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी सेंटिमेंट्स. सो इट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ ऑल नेचर्स क्रिएशन. जितने भी नेचर की क्रिएशन है वो उनको सबको प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज उनका मानना है, और ये ऐसा ही मानना होना चाहिए, दैट इट इज़ दी फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. दे आर वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म. मतलब उसमें कोई किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं है. इट इज द मोस्ट होलीएस्ट एरिया इन दोज एरियाज. दैट इज द सेक्रेड ग्रूव्स. सेक्रेड ग्रूव्स इज नथिंग बट द एरिया ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली दे आर प्रोटेक्टिंग ऑल नेचर्स क्रिएशन. सो उसमें आने वाले जानवर भी आएंगे, इंसेक्ट्स भी आएंगे, रेप्टाइल्स भी आएंगे, फिशेस भी आएंगे, बर्ड्स भी आएंगे एंड प्लांट्स भी आएंगे. सो मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज केप्ट वर्जिन. मतलब क्या, इट इज लेफ्ट अनटच्ड बाय लोकल पीपल. यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करना ही बैन है. हंटिंग तो दूर की बात है, इंटरफेरेंस करना ही बैन है. सो दैट्स वन पार्ट. अगेन, सो व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, एक पूरा जोन आप लिख सकते हैं विलेजेस के ऊपर,
communities के ऊपर, and one you can write on sacred groves of tribal people. Then you have to focus that there are certain species which are reserved particularly for trees. So certain species of trees are specially reserved. So कौन कर रहे हैं और किधर कर रहे हैं? So Mundas and Santhals in the Chota Nagpur region are preserving which trees? Mahua and Kadamba, known as the Basia latpilia and Anthocapulus cadamba. So ये जो ट्रीज है, ये ट्रीज के नाम है, इनको कौन बचा रहा है? Mundas and Santhals in the Chota Nagpur region. Second point is the tribals of Odisha and Bihar, for their special purposes such as weddings and ceremonies, they are protecting which two trees? Tamarinds and mango. So Tamarindus indica and Mangifera indica are the trees names, scientific names, और अपना इंडियन नेम क्या है? Tamarind and mango. इनको क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ इंडियंस, मतलब हम सब लोग इन लोगों को छोड़ के या फिर इन लोगों को पकड़ के बाकी सब लोगों को, इंडियंस लोगों के लिए बैनियंस एंड पीपल आर द मोस्ट मेजर ट्रीज टू बी फाउंड. सो ये ट्रीज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम लोग क्या कर रहे हैं? सी इनडायरेक्टली अगर किसी एक जोन में अगर ये कोई एरिया है और ये एरिया में मुंडास लोग रहते हैं, सांथल्स रहते हैं, ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा या फिर कोई इंडियंस रहते हैं, तो कोई ना कोई ट्री को वो कंजर्व कर ही रहे. तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? सी ना, इन कंजर्वेशन ऑफ दैट ट्री, इन प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री, वो ट्री का प्लांटेशन इतना हो जाएगा दैट वो ट्री का क्वांटिटी बढ़ने की वजह से एक फॉरेस्ट एरिया डेवलप हो जाता है. दैट्स द पॉइंट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. दैट इज द रीजन मैंने इसको ब्लू में लिखा है ताकि आपको थोड़ा क्लिक हो कि ये ट्री के ऊपर फोकस्ड आंसर है और रेस्ट ऑल वाज द एंटायर फॉरेस्ट एरिया. सो यहाँ पे मैं एक ट्री को फोकस करता हूँ जो मैंने ड्रॉ भी किया है, लेकिन ट्री के साथ साथ एक ही ट्री नहीं, उसके अलग अलग टाइप्स आएंगे, अलग अलग ट्रीज आएंगे और वो क्या बन जाएगा? एक फॉरेस्ट एरिया बन जाएगा. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंडियन कम्युनिटीज. सी, जो भी गॉड्स क्रिएशन है उसको कंजर्व करने का ट्रेडिशनल मेथड है. इंडियन कम्युनिटीज में बिलीफ है जो भी भगवान का क्रिएशंस है मुझे उसको क्या करना है? कंजर्व करना है और मुझे उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करने हैं. देयर आर सम सेक्रेड क्वालिटीज क्लोजली प्रोटेक्टिंग व्हाट? स्प्रिंग्स, प्लांट्स, माउंटेन पीक्स एंड एनिमल्स. सो ये सब क्या है? लीडिंग टू व्हाट? लीडिंग टू फॉरेस्ट एरिया. मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं? बेसिकली कंजर्वेशन के पैटर्न्स है, अलग अलग वेज ऑफ डूइंग कंजर्वेशन. सो एक टेम्पल बना के रखा है, ये दिस यू कैन फाइंड इन एन नंबर ऑफ प्लेसेस अक्रॉस इंडिया. इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि टेम्पल्स के आसपास आपको बहुत से नॉर्मल मंकीज मिलेंगे, लंगूर्स मिलेंगे. ट्रूप्स ऑफ मैंकोस मींस नॉर्मल मंकी विद अ शॉर्ट टेल, ओके, एंड लंगूर्स मिलेंगे. इनको खाना भी दिया जाएगा, ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, एंड दे आर ट्रीटेड एज टेम्पल डिवोटीज. मतलब इनका ख्याल रखा जाएगा. दीज आर एज गुड एज सिटीजन्स ऑफ दोज एरिया. दे आर नॉट ट्रीटेड एज एनिमल्स. इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस, इवन यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस कि बहुत से इंडियन मंदिरों के पास, स्पेशली अगर वो हनुमान जी का अगर मंदिर होगा तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे आने वाले मंकीज को नो वन विल हार्म देम, रादर दे विल वर्शिप देम. ओके, सो राजस्थान में बिश्नोई नाम का विलेजेस है, उसको इस कम्युनिटी को बोलते ही है बिश्नोईज. ओके, सो बिश्नोईज क्या करते हैं? वो लोग उनको एनिमल्स को, कौन से एनिमल्स को? चिंकारा, नीलगाई एंड पीकॉक्स. चिंकारा इज नथिंग बट हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक. नीलगाई एंड पीकॉक्स, इन सबको एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी मानते हैं और उनको हार्म नहीं करते और किसी और को करने को भी नहीं देते. सो आप एक बात नोट करें, हमने पहले ही देखा बहुत सारे विलेजेस से, फिर ट्राइबल्स आ गए, फिर ट्रीज पे पॉइंट आ गया, फिर कम्युनिटी से पॉइंट आ गया. अभी हमने देखा कि कैसे हम उसको लिंक करवा रहे हैं. वी आर लिंकिंग दैट विद द बिलीव्स ऑफ अवर गॉड्स एंड गॉडेसेस. अगर हम एक बार सेंटिमेंट्स जोड़ देते हैं तो ह्यूमन बींग्स विल ऑल्सो हैव अ सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द वाइल्ड एनिमल्स. दे विल स्टॉप किलिंग देम. सो व्हाट इज हैपनिंग? हम लोगों ने देखा कि बिश्नोई नाम की कम्युनिटी ने कैसे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बचा के रखा है और उनको एक कम्युनिटी, एक घर का हिस्सा बना के रखा है और किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाते. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द चिपको मूवमेंट इन हिमालयस वाज सक्सेसफुल इन रेजिस्टिंग डिफॉरेस्टेशन. उन्होंने क्या किया? जितना हो रहा था डिफॉरेस्टेशन फॉर वेरियस ट्रेड्स, उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड डूइंग कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन. व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? अगर डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट को कट करना है तो एफॉरेस्टेशन प्लांट्स को प्लांट करना है. उन्होंने इंडिजिनियस स्पीशीज मतलब जो वहाँ पे मिलने वाले ट्रीज है उनको ही प्लांट करना शुरू किया. इंडिजिनियस मीन्स जो वहाँ पे मिलता है, और वो काफ़ी हद तक
एनॉर्मसली सक्सेसफुल हुआ. व्हाट आर द टू थिंग्स सक्सेसफुल स्टूडेंट्स? एफॉरेस्टेशन बहुत से लोगों का एंड इंडिजिनस स्पीशीज. सो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. अगर ये कोई पार्ट है और यहाँ पे एक विलेज भी है, ये विलेज में 100 लोग रहते हैं. अगर 100 लोगों ने एक छोटे छोटे प्लांट्स भी प्लांट करना अगर शुरू किया तो यहाँ पे कितने प्लांट्स आएंगे स्टूडेंट्स? 100 प्लांट्स. 100 प्लांट्स इटसेल्फ इज अ बिग फॉरेस्ट एरिया. सो व्हाट इज द डिक्लेरेशन डन कि मैंने क्या किया? आई प्लांटेड 100 ट्रीज, सो हुआ एफॉरेस्टेशन. मैंने कौन से ट्रीज प्लांट किए? आई डिडंट गो एंड गॉट सम इम्पोर्टेड स्टफ. आई वेंट एंड बॉट समथिंग विच इज़ इंडिजीनियस, मतलब जो वहाँ पे मिलता है, लोकल है. मैंने उनको प्लांट किया तो उनका प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होगा और गारंटी के साथ होगा. मतलब ये प्लांट होने ही वाले हैं बिकॉज वो वही क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो होते हैं. इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? इससे यही होगा कि एक बड़ा सा एरिया विच वॉज रिजल्टेड फॉर डिफॉरेस्टेशन नाउ इज फोकसिंग mainly on afforestation. Next point is traditional conservation methods and new methods for ecological farming are being adopted. So what are they doing now? They are doing both old and new methods for ecological farming. किसी भी तरीके से, किसी भी method से they are trying to conserve. Farmers and citizen groups have been formed for Beach Bachao Andolan at Terry is in the Upper Ganga Plain and now Daniam. So कुछ ना कुछ ग्रुप्स बना रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू फॉर्म मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर ट्राइंग टू डू व्हाट? उसका रिजल्ट क्या है? डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन, नो यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स. इससे क्या होगा? वहाँ पे फर्टिलिटी पे अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन पे अफेक्ट होगा. जितना प्रोडक्शन पे अफेक्ट होगा, पीपल विल गो एंड सर्च न्यू एरियाज एंड दैट विल रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन. सो अगर एक चीज़ को रोकना है तो उसको करने वाले दूसरे चीज़ों को भी हमको बचाना होगा. सो क्या कर रहे हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग, वो डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं और किसी तरह केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे और देख रहे हैं कि भाई वो इकोनॉमिकली वायबल है, पॉसिबल भी है. दे आर नॉट डूइंग समथिंग आउट ऑफ देयर पॉकेट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया. इंडिया के अंदर JFM नाम का एक चीज़ चालू हुआ ओडिशा में इन 1988 फॉर द फर्स्ट टाइम. ये है क्या? इट इज़ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. It involves local communities for managing and restoration of degraded forest. See, basically the area is owned by forest department. अगर ये area है, it is owned by whom? Forest department. लेकिन managed by whom? Local villages and institutions. ये लोग क्या कर रहे हैं? इसको manage कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट अगर पूरा का पूरा लोकल कम्युनिटीज कर रहे हैं, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे एक ही चीज़ हो रहा है. दे आर गेटिंग द एंटायर एरिया विच वॉज नोन एज डिग्रेडेड फॉरेस्ट बैक टू फॉरेस्ट एरिया. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब उनको कुछ तो चाहिए इन रिटर्न, कुछ लालच देना पड़ेगा कि भाई ये करोगे तो ये मिलेगा. सो द मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएट बेनिफिट्स ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. So they are getting some of the other benefits of non-timbers. They are getting share in timber harvested by successful protection. So इनको क्या चाहिए? See, basically आदमी को क्या चाहिए? कुछ पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. So ये उनको प्रोवाइड किया जा रहा है. जो लोग क्या कर रहे हैं? डिग्रेडेड फॉरेस्ट को वापस फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं. Okay? Now the next is they are also involved in some kind of natural resource management. किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं? नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. मोस्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग. आज भी कुछ कम्युनिटीज क्या कर रहे हैं? डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि येस शुड वी डू इट और नॉट. उनका ये मेन कंसर्न क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज दे वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पीपल सेंट्रिक. उनको खुद का भी डेवलपमेंट चाहिए, उनको चाहिए एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट सो और economically rewarding ho. So they want basically all round development of themselves also as well as the forest area. So at last I would like to conclude here with this beautiful saying which we have of Gautam Buddha in 487 BC. He had said that a tree is having unlimited kindness, is always good to others, benevolence, makes no demand, gives its product selflessly without any expectations in return. It protects all. It even gives shade to those axemen who tries to destroy it. So please conserve forest. Plant more trees.
So with these students, we take notes of this particular part. I hope you enjoyed it. Thank you.